sell. Again I am repeating students, market plus ing, तो हमारे चैप्टर का नाम बना मार्केटिंग. But before going to the meaning of marketing, let me tell you what is market. As per the traditional approach, market is a place. So it is this geographical area where buyer and sellers, B and S, they come into the direct contact of each other. Buyer is there to buy the things and seller is there to sell the things. And they exchange the goods and services for a consideration, that is what we call price. Right? ये traditional definition है. लेकिन आज के जमाने की modern definition का मतलब क्या है? Market is not a place. क्योंकि आज तो मैं by clicking on my laptop or on my mobile phone I can buy the thing. It means I need not to visit to a place. So modern approach क्या है? That is sum total of actual and prospective buyers. जो एक्चुअली आपका सामान खरीदते हैं और जो एक्चुअली खरीदते हैं वो तो एक्चुअल बायर्स है. जो खरीदने की डिजायर रखते हैं उसे प्रोस्पेक्टिव बायर्स कहते हैं. तो मॉडर्न डेफिनेशन हैज अ वाइडर कॉन्सेप्ट हियर. मॉडर्न डेफिनेशन में कहीं भी उसने नहीं लिखा इट इज अ प्लेस, इट इज अ फिजिकल प्लेस कि मेरे को कहीं जाना होगा सामान को खरीदने को. अगर मैं कहती हूँ आईफोन की मार्केट एक्सपैंड है, ठीक है, आईफोन का मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है, उसका मतलब क्या है? उसके यूजर्स एक्चुअल बहुत हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो उस फोन को खरीदने की चाह रखते हैं. सो एक्चुअल बायर्स एंड प्रोस्पेक्टिव बायर्स दोनों को ऐड कर दें तो मार्केट की डेफिनेशन बनती है एज पर द मॉडर्न अप्रोच. लेकिन वी आर रिलेटेड विद मार्केटिंग. सो मार्केटिंग इज अ प्रोसेस. मैं बोलती हूँ बिजनेस स्टडी में किसी भी वर्ड के साथ आईएनजी लग गया तो दैट इज अ प्रोसेस. So it is a process of planning, organizing, directing and controlling the activities related to buying and selling of goods. That is transfer of ownership from seller to buyer. तो बायर तक सामान पहुंचाने के लिए रास्ते में जिन कितनी भी एक्टिविटीज का हमें सहारा लेना पड़ता है उनकी प्लानिंग करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको डायरेक्ट और कंट्रोल करने के प्रोसेस को हम मार्केटिंग मैनेजमेंट कहते हैं. ठीक है जी. तो मार्केटिंग भी अपने आप में एक प्रोसेस है. दैट इज व्हाट? प्रोसेस ऑफ सेंडिंग द गुड्स फ्रॉम योर सप्लायर टू कंजम्पशन सेंटर. ठीक है, मतलब कंज्यूमर तक सामान पहुंचाने में रास्ते में जो जो एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं वो सारी मार्केटिंग है. ठीक, that may include your advertisement, that may include the distribution services, that may include the transportation services, that may include even post sale activities. post sale activities मतलब फ्री में वारंटी, 1 साल तक सामान को यूज करो, अगर कोई खराबी आती है तो हम फ्री में रिपेयर करेंगे. तो दैट इज व्हाट वी कॉल पोस्ट सेल सर्विसेज. ठीक है, इवन प्री प्रोडक्शन सर्विसेज भी मार्केटिंग की डेफिनेशन में आती हैं. प्री प्रोडक्शन सर्विसेज क्या होती हैं? फर्स्टली यू कंडक्ट द मार्केट सर्वे एंड देन यू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द गुड्स. वो जमाने चले गए जब आप जो बनाते थे बिक जाता था, अब वही बनाएंगे जो कस्टमर को चाहिए. So firstly, we will be conducting the interviews, we will be conducting the survey, and we will be asking the consumer which type of product and which quality and which ingredient they want in a particular product. Like I'm thinking to manufacture the Hassel powders. So I will be going to door, and I will be conducting the survey from the housewives or from the like women. At present, which detergent powder you are using? Are you satisfied with your product? If not, tell us. What are the deficiency you are finding in your existing product? So we will try कि वो deficiencies और वो negative points हमारे product में ना हो. Like कहीं कहीं की skin sensitive है, वो कहते हैं एक detergent में use तो कर रही हूँ like Ariel या Rin Advance, लेकिन मेरे हाथों में rashes हो जाते हैं. So we will be putting less chemical ताकि sensitive skin के लिए भी वो harmful ना हो. तो कुछ इस तरह से हमारा marketing का process क्या होता है, start होता है. But in my today's lecture, I am basically related to tell you about how the project is to be made. If I see the overall chapter, पूरा एक chapter 15-20 दिन लगते हैं अभी chapter करवाने में, तो हमारे पास अभी आने वाले 5 दिन है, जितना हो जाएगा good. लेकिन मैं 2 दिन जरूर लगाऊंगी आपको बताने के लिए कि आपने project में क्या करना. So your project will be related to launching of a product. ठीक है, जितने मेरे 2 lecture में आपको पता चल जाएगा और that will help you a lot to prepare your project, right?
आपने प्रोजेक्ट बनाना होता है इस चैप्टर को बेस बना के, दैट इज लॉन्चिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। आप अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, दैट कैन बी योर टूथपेस्ट, लेकिन नाम जो ऑलरेडी मार्केट में प्रोडक्ट्स का है वो नहीं रखेंगे। यू विल बी हैविंग द डिफरेंट नेम ऑफ योर टूथपेस्ट। एंड अब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का जमाना है तो प्रेफरेबली आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। दैट कैन बी द नेम, लीव से रिलेटेड हो सकता है, देन ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट्स बीच में हो सकते हैं। मींस हम लोगों ने कोई भी केमिकल्स बीच में इंड्यूस नहीं करे, तो आपने पहले तो ये डिसाइड करना आपने कौन सा प्रोडक्ट बनाना है। दैट कैन बी शू, दैट कैन बी स्पोर्ट शूज, दैट कैन बी जीन्स, दैट कैन बी अपैरल फॉर विमेन, दैट कैन बी बैग्स, that depends upon you कि which product you want to launch in the market, ठीक है। जैसे लास्ट ईयर मेरे एक स्टूडेंट ने बनाया था हैंड सैनिटाइजर, बिकॉज दैट वाज बिग इन डिमांड, सो शी टुक एन आइडिया कि मैं हैंड सैनिटाइजर बनाऊं। एक ने बनाया था विमेन ड्रेसेस पे, ठीक है, तो डिफरेंट पार्टी वेयर ड्रेसेस, कैजुअल ड्रेसेस, टीनेजर्स के लिए ड्रेसेस, एटसेट्रा एटसेट्रा, कैजुअल ड्रेसेस, इस तरह से 3-4 कैटेगरी लेके उसने ड्रेसेस पे बनाया। Mind one thing, you will not be going with any existing name. आपके ऊपर केस हो सकता है, आपने अपने प्रोडक्ट का अलग से एक नाम रखना है जो ऑलरेडी मार्केट में नहीं है। You can go with chocolates, you can go with the coffee, you can go with the pen, you can go with the air freshener, ठीक है। एक ने एयर प्योरीफायर पे बनाया था, ठीक, जैसे एसी हम लोग रूम में इंस्टॉल करते हैं उसी तरह से ऑक्सीजन की कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए एयर प्योरीफायर पे एक स्टूडेंट ने बनाया था। So you can go with any type of the product. तो पहला पूरा चैप्टर आपका 4 P's से रिलेटेड है। सबसे पहले select which product you want to produce, और वही प्रोडक्ट बनाइएगा जिसके ऊपर बैन नहीं है, ठीक है, जिसको बनाने की गवर्नमेंट हमें परमिशन देती है, आपको ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ेगी, और दैट इज बिग इन डिमांड, और आपको लगता है कि मार्केट में हमारा सामान बिक जाए। यू हैव टू डेवलप एन आइडिया, मैं किस साइज का प्रोडक्ट बनाऊंगा, क्या उसकी शेप होगी, क्या उसका मॉडल होगा, मैं उसकी कितनी रेंजेस रखूंगा। लाइक बेसिक मॉडल से स्टार्ट होके मैं अपर रेंज तक जाऊंगा, मींस मेरे पास 3 तरह के मॉडल्स होंगे जो डिफरेंट रेट्स पे क्या होंगे, अवेलेबल होंगे। लाइक इफ यू गो विद एनी परफ्यूम, तो परफ्यूम में यू कैन गो विद डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस। इफ यू आर गोइंग विद अ शैम्पू, तो यू कैन गो विद सिल्की हेयर, फॉर ड्राई हेयर, फॉर रफ हेयर, इस तरह से फॉर किड्स, तो इस तरह से डिफरेंट रेंजेस आप उस शैम्पू की बना सकते हैं। सो फर्स्टली यू हैव टू डिसाइड आपको कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, और प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिखनी है जो हमारी बुक में है। प्रोडक्ट इज बंडल ऑफ यूटिलिटीज व्हिच अ कंज्यूमर गेट व्हेन ही पे फॉर इट। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, एक ऐसा पैकेज, एक ऐसा यूटिलिटीज का बंडल जो आपकी नीड को सेटिस्फाई करता है, बदले में आप उसके लिए पेमेंट करते हो, ठीक है। तो प्रोडक्ट जरूरी नहीं है कि फिजिकल गुड्स ही हो, दिस कैन बी अ सर्विस। When you are in insurance policies, so you are getting a service. तो सर्विस से भी आपको सेटिस्फेक्शन होती है, आपकी नीड क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। तो प्रोडक्ट की डेफिनेशन वाइडर है भाई, इट कैन बी गुड, इट कैन बी सर्विस, बट बेटर है कि आप प्रोडक्ट को गुड्स लेके ही बनाना अपना प्रोजेक्ट। देन वी स्टार्ट विद द सेकंड पी। जो सामान आपने बनाने के बारे में सोचा है वो फ्री में तो बेचना नहीं है, आप समाज सेवा तो कर ही रहे हो, डेफिनेटली यू वांट टू अर्न प्रॉफिट। सो इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट यू हैव टू फिक्स अ प्राइस फॉर इट। सो प्राइस क्या है, एन अमाउंट which a consumer is supposed to pay and which the seller fixes in order to sell it in the market. तो प्रॉफिट का बेसिकली क्राइटेरिया क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस प्रॉफिट मार्जिन बीच में ऐड करो। अब यहाँ पे आपको प्राइस डिफरेंट फिक्स करने पड़ेंगे भाई। फॉर होलसेलर के लिए आप क्या प्राइस रखेंगे, रिटेलर के लिए आप क्या प्राइस रखेंगे, अगर आपने डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचना है तो आप कंज्यूमर के लिए क्या प्राइस रखेंगे, इवन होलसेलर से पहले भी डीलर आते हैं, डीलर के लिए क्या प्राइस रखेंगे। डीलर के लिए सामान सबसे सस्ता होगा। फॉर एग्जांपल आई एम सेलिंग अ पेन, ठीक है, वैसे मैंने कंज्यूमर को 75 का बेचना है, डीलर को मैं 62 का बेचूंगा, ठीक है, होलसेलर को मैं 65 का बेचूंगा, रिटेलर को हम 71 रुपीज का बेचेंगे और कंज्यूमर को 75 का, ठीक है जी। So like that way you will be fixing the price for different levels. You can go with the soft drinks, you can go with the energy drinks, you can go with the juices, organic juices. तो जैसे जैसे प्रोडक्ट के नाम मेरे माइंड में आते जा रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ। सोप्स पे बना सकते हो आप, बट यू हैव टू चूज अ गुड नेम फॉर योर प्रोडक्ट, ठीक है। फिर आपने एनिमेटेड उसकी कोई पिक्चर बना के लगानी है, आप फोटोशॉप पे जाके आप खुद अपने प्रोडक्ट की डिजाइनिंग करेंगे और उसकी पिक, मतलब प्लेन पेजेस शुड नॉट रिमेन वेकेंट,
that should also to be filled, और अच्छे colored pictures ही लगानी है आपने अपने प्रोडक्ट की, राइट। फिर आप अपने प्रोडक्ट का जैसे ही थोड़ा सा आगे जाओगे तो आप अपने प्रोडक्ट के लिए मार्केट में कौन कौन से कॉम्पिटिटर देखते हो, आपके कॉम्पिटिटर का इसी प्रोडक्ट का क्या प्राइस है, ठीक है। आपने अपने प्रोडक्ट का नाम फॉर एग्जांपल पेनेराइट रखा, पेनेराइट, पेन यूज फॉर रिटर्न वर्क, ठीक है, टू राइट, तो पेनेराइट ऐसे मेरे माइंड में आया दैट आई एज्यूम पीडब्ल्यू रख सकते हैं, पेनेराइट फुल फॉर्म हो सकती है, राइट। तो आपके मार्केट में उस पेन को लेके कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, लाइक यूनिबॉल मेरा कॉम्पिटिटर है, देन पायलट पेन मेरा कॉम्पिटिटर है। आप उनसे बढ़िया क्या फीचर दे रहे हैं कि लोग आपका सामान खरीद, आप अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, आप उसका लो प्राइस फिक्स कर रहे हैं, so that's why you are convincing or you are in a position to convince your consumer, yes, come forward and buy our product because it is much better, right? So this will be your price का साथ आप अपने कॉम्पिटिटर्स के प्राइसेस के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, उसका भी एक पेज बन सकता है, राइट। Then we have third P, that is physical distribution. So it is a process or it comprises a series of steps which are to be taken, which are to be involved to transport the goods from production center to ultimate consumption center. तो सामान को प्रोडक्शन सेंटर से लेके गाड़ियों में रख के गुड्स ट्रेन में या ट्रक्स वगैरह में लोड करके आपने फाइनल कंज्यूमर्स तक पहुंचाना होता है। इस सारे प्रोसेस को हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। फिजिकली द थिंग्स आर नॉट टू बी यूज्ड वेयर दीस आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। जहां पे सामान बना है वहीं पे थोड़ी ना यूज होना है, आपने अपने देश के अलग-अलग कोनों में सामान को क्या करना है, सप्लाई करना है। So this is to distribute the goods from place of production to the place of consumption. और बीच में कितनी लंबी चौड़ी चेन है भाई, वो लंबी चौड़ी चेन क्या है, आपकी कंपनी का एजेंट हो सकता है जिसे मैं डीलर भी कहती हूँ, फिर आपका होलसेलर आएगा बीच में, फिर आपका रिटेलर आएगा और फिर कहीं जाके अल्टीमेटली कंज्यूमर आएगा, ठीक है जी। अब आपको डिसाइड करना है आपने इतनी लंबी चौड़ी चेन के साथ जाना है कि सीधा कंज्यूमर के साथ डील करना है। जब आप कंज्यूमर के साथ सीधा डील करोगे तो उसे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, क्योंकि बीच में कोई मिडलमैन नहीं। सो दिस यू हैव टू डिसाइड कि आप अपना प्रोडक्ट सीधा कंज्यूमर को बेच सकते हो। आपने कोई अपना वेब पेज ओपन किया है जिस पे जाके लोग आपके सामान के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। दिस ऑल यू हैव टू राइट इन योर प्रोजेक्ट, मींस यू हैव टू अप्लाई योर माइंड, यू हैव टू बिहेव लाइक अ मस्ट स्टूडेंट, you have to behave like a businessman कि मैंने ये नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आना, मैं कैसे बेचूं, ठीक है। Then we have promotion. Everybody is familiar. Today's era is of promotion. अपनी वेब सीरीज को, अपनी मूवीज को प्रमोट करने के लिए मूवी की, वेब सीरीज की कास्ट डिफरेंट शोज में जाती है, रियलिटी शोज में जाती है, दैट इज प्रमोशन। Similarly, I just need to promote my product. I just need to advertise my product. तो आप एडवर्टाइजमेंट का कौन सा वे अडॉप्ट करोगे? आप मीडिया में न्यूज़पेपर के थ्रू ऐड दोगे, टेलीविजन में ऐड दोगे, एफएम रेडियो में ऐड दोगे, दिस यू हैव टू डिसाइड। उसके बाद इसी में हमारा डिस्काउंट ऑफर्स भी आता है, इसी में हमारी सेल प्रमोशनल टेक्निक आती है, बाय वन गेट वन फ्री, ठीक है। अगर आप मेरे टूथपेस्ट का 500 ग्राम का पैक लेते हैं तो साथ में 100 ग्राम का मैं फ्री दूंगा, ठीक है, बाय वन गेट वन फ्री। कुछ एडिशनल बेनिफिट आप उन्हें देते हैं या कोई गिफ्ट वाउचर देते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। दीज ऑल आर द प्रमोशनल टेक्निक्स, राइट। सो अबाउट फोर्थ पी यू हैव टू मेंशन, आप अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन कैसे करेंगे, कौन से सेलिब्रिटी को आप एडवर्टाइजमेंट के लिए हायर करेंगे, हाउ यू विल कम इन द मार्केट, हाउ यू विल कन्विंस योर कंज्यूमर, हाउ यू विल एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट, ठीक है। सो दिस ऑल विल बी इंक्लूडेड इन योर प्रमोशन। सो अबाउट these 4 P's, ultimately the project should be comprising of 30 to 35 pages, राइट। जर्नल आपको बुक में से इसका मीनिंग मिल जाएंगे, सारे टर्म्स के मीनिंग मिल जाएंगे, बाकी सारी आपकी अपनी क्रिएटिविटी होगी, ठीक है। एक पेज आप ये बनाएंगे, व्हाई यू आर चूजिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। आप ऑर्गेनिक टी बना रहे हैं बिकॉज नाउअडेज कंज्यूमर्स आर हेल्थ कॉन्शियस, दे पे द प्रायोरिटी टू देयर हेल्थ, ठीक है। तो उससे रिलेटेड आपने क्या करना है, ऐसे प्रोडक्ट बनाने हैं जिसकी मार्केट में क्या है, डिमांड, जो लोग इजीली आपका क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे, एंड यू आर होपफुल कि यस माय प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी सोल्ड इन द मार्केट इन अ वेरी गुड मैनर। So this all you will be preparing in your, you will be writing in your project, right? One last day I will be using for project work. Now I will be proceeding with your book, right? Have you got your second part? Then in your project you will be explaining your product.
सो प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको 4 और बातें माइंड में रखनी है. दैट इज प्रोडक्ट ब्रांड. मीन्स आप नाम क्या रखो, ब्रांड नेम. आपको अपने प्रोडक्ट का नाम भी तो डिसाइड करना है. ये थोड़ी ना कह दोगे पेन. जब मैं कहती हूँ पेनोराइज, मैंने नाम रखा है तो दैट इज द नेम ऑफ द पेन. जब मैं ये कहती हूँ आई एम मैन्युफैक्चरिंग पेन तो दैट इज द जेनरिक नेम. यू हैव टू असाइन अ स्पेसिफिक नेम टू योर प्रोडक्ट. लाइक यूनिबॉल के पेन है, पायलट के पेन है, राइट, रेनॉल्ड के पेन है, फ्लेयर के पेन है. तो दीज आर द नेम ऑफ द प्रोडक्ट. देन यू हैव टू गो विद द पैकेजिंग. आपने उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग के बारे में भी तो सोचना है. उसका रैपर कैसा होगा, उसका बॉक्स कैसा होगा. This all you have to think about the packaging of the product. Then we have labeling. ठीक है, लेबलिंग में आपने फॉर एग्जांपल यू आर मैन्युफैक्चरिंग चिप्स, तो चिप्स के फ्रंट में तो आपने अपनी चिप्स का नाम लिख दिया. लाइक लेस का नाम हमें मिलता है, अंकल चिप्स का नाम हमें मिलता है. जब हम उसका बैक साइड देखते हैं तो वहां पे इंग्रेडिएंट्स है. तो इंग्रेडिएंट्स मींस यू आर मेकिंग अवेयर टू योर यूजर. आप उसमें एक्सपायरी डेट लिख रहे हैं, आप उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट लिख रहे हैं, आप उसमें मैन्युफैक्चरर का एड्रेस लिख रहे हैं. दैट ऑल आर द पार्ट ऑफ योर लेबल. फैट कितना है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, कार्बोहाइड्रेट्स कितना है, प्रोटीन कितना है. आई एम टॉकिंग अबाउट द पैकेट ऑफ लेस, राइट. सो दिस ऑल हैज टू बी मेंशन्ड इन द लेबल. फॉर एग्जांपल जब आप मेडिसिन की बॉटल देखते हैं या टैबलेट का पैकेट देखते हैं तो वहां पे एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है. प्राइस MRP भी लिखा होता है. So this is all is a part of label. So label is giving the information to the user. So आपने भी अपने प्रोडक्ट के लेबल के बारे में सोचना है. ठीक है. So how you will be designing your label? Label should be attractive. That should be in a legible condition. The person should be able to read what you have written. टोल फ्री नंबर अपना दे दीजिए. फॉर कंप्लेंट यू कैन डायल दिस नंबर एटसेट्रा. So such type of facilities you are giving on the package of your product. That is what we call label. Label is very much essential. When I talk about the ready-made dresses, especially for the girls, तो वहाँ पे लिखा होता है how to wash, how to dry. ठीक है, वॉश करिए इसको उल्टा के और शेड में ही इसे ड्राई करिए. Don't iron on the front or on the print. So such type of instructions are also being given in your ready-made apparels. So that is the label. Label is can be most simple, can be most complicated. So from simple to complex आपका लेबल का फॉर्म हो सकता है. आपको डिसाइड करना है कि आपको अपना लेबल कैसे बनाना है प्रोडक्ट का. So when you will be discussing about your project regarding the first P, that is product, you have to mention these 3 things also. That is brand, then packaging, and then labeling. These things are very, very important. Then you will be coming to the pricing, then you will be coming to the physical distribution, and ultimately you will be winding up your project with promotion. After writing about these all journal things, you will be writing about your project. At the end, you will be writing conclusion and suggestion. ठीक है, कंक्लूजन और सजेशन पे आप आओगे. अब इसी चैप्टर में से एक और प्रोजेक्ट बनता है, वो पैकेजिंग, चेंजेस इन पैकेजिंग ड्यूरिंग लास्ट 3 और 4 डेकेड्स. ठीक है, तो बच्चे आमतौर पे पैकेजिंग की एग्जांपल लेते हैं पिछले 30-40 सालों में पैकेजिंग में और क्या चेंजेस आ रहे हैं. मैं पैकेजिंग के बारे में हमेशा एक लाइन कोट किया करती हूँ, पैकेजिंग इज अ साइलेंट सेल्समैन. किसी भी चीज की अच्छी पैकिंग हुई होती है, वो मॉल के शोर या किसी शोरूम के शेल्फ के ऊपर डिस्प्ले हुआ होता है. दैट ऑलवेज अट्रैक्ट अ कंज्यूमर. आप खुद ब खुद उसकी तरफ खींचे चले जाते हो और आप पूछते हो इसमें क्या है. मींस अच्छी पैकेजिंग करना भी हाफ जॉब डन है. तो आपने अपने प्रोडक्ट की अच्छी पैकेजिंग करनी है, तो इसके ऊपर अलग से एक प्रोजेक्ट बनता है. पिछले 30-40 सालों में हमारी पैकेजिंग में क्या क्या चेंजेस आई. लाइक अर्लियर, अगर मैं मिल्क की एग्जांपल लूं, कोई 4-5 प्रोडक्ट आप ले लोगे. अगर मैं मिल्क की एग्जांपल लूं तो आज से 25-30 साल पहले मिल्क कांच की बॉटल्स में आया करता था, राइट. उसके बाद मिल्क को किस में आना शुरू हो गया, हमारे पोली पैक में आना शुरू हो गया. एंड नाउअडेज द मिल्क इज कमिंग इन टेट्रा पैक, जिसकी शेल्फ लाइफ 7 to 10 डेज है. इवन कई मिल्क की पैकिंग आपको 30 डेज भी रिकमेंड करते हैं कि 30 डेज तक अगर आप इसे ओपन नहीं करते तो इसकी शेल्फ लाइफ 30 डेज. तो पैकेजिंग में इस ढंग से इंप्रूवमेंट आई है कि प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ भी बढ़ गई. फ्रूट की एग्जांपल हो तो पहले वुडन क्रेट में आया करता था, फिर प्लास्टिक क्रेट में, अब सिंगल पैकेजिंग. अब देखो नेट की पैकेजिंग में या बबल पैकिंग आनी शुरू हो गई. So these all are the changing during 3 or 4 decades. So you can take 5 products जिनकी पैकेजिंग में पिछले 30-40 सालों में चेंजेस आई. आप अकेला पैकेजिंग पे भी बना सकते हैं. ठीक है, तो ये भी 30-35 पेजेस का अच्छा खासा और विद गुड पिक्चर्स आपका प्रोजेक्ट बन जाता है, राइट. So this also you can go ahead.
आप किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन आज के लेक्चर में और प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन डाउट है, यू कैन आस्क।